السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں محمد حسنین خان۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے حکومت کا پیٹرول مصنوعاتی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 45 پیسے کمی کر دی گئی۔ وزارت خزانہ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 42 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے اور وزارت خزانہ کی جانب سے لائٹ ڈیزل میں 5 روپے 63 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جبکہ مٹی کا تیل 8 روپے 74 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے۔ حکومت کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 45 پیسے کی کمی، ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 42 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی۔ لائٹ ڈیزل 5 روپے 63 پیسے سستا کر دیا گیا، جبکہ مٹی کا تیل 8 روپے 74 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا ہے۔ حکومت کا پیٹرولی مصنوعاتی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 45 پیسے کمی کر دی گئی، ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 42 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی، لائٹ ڈیزل 5 روپے 63 پیسے سستا کر دیا گیا، مٹی کا تیل 8 روپے 74 پیسے فی لیٹر سستا ہوا ہے اور یہ قیمتیں 2 ہفتے تک برقرار رہیں گی۔ حکومت کا پیٹرولی مصنوعاتی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ عدلیہ میں مداخلت کرنے نہیں دیں گے، آئیں طے کر لیں کہ ہم کبھی کسی سیاسی قوت، حکومت یا ایجنسیوں کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے ججز کے خط سے متعلق از خود نوٹس کیس میں ریمارکس۔ کہا کہ ملک میں بہت زیادہ تقسیم ہے، ہمیں ایک طرف یا دوسری طرف کھینچنا بھی عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ ہمیں اپنی مرضی کے راستے پر چلانے کے لیے مت دباؤ ڈالیں، عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے۔ Clear the very first day, I will never accept any interference from any source, and there has not been a single complaint since my assumption of this office to me. So interference of any kind from any source, any phone call, that should also be equally, we should also call about self-accountability within the judiciary. And has there not been interference, and the greatest of interference from within and the highest court of the land? یہ ان کا کام ہے۔ اچھا اگر وہ نہ کریں، پارلیمان کر سکتی ہے، بلوچستان کی پارلیمان کر سکتی ہے، سندھ کی پارلیمان کر سکتی ہے، باقی صوبوں کی کر سکتی ہے، کہ نہ میرے پاس، نہ میرے خیال میں ہم میں کسی کے پاس، نہ اس کمرے میں جتنے معتبر وکلا صاحبان ہیں ان کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے جس سے آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بنا دیں۔ ہمیشہ آتی تھی انٹیلیجنس رپورٹس، میں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسی are not members of the Judicial Commission of Pakistan, their reports will not be considered. When we mandate the role of intelligence agencies by constituting JITs which are not provided for any law other than ATC laws. اس ملک میں سچ بولنا مشکل ہو چکا ہے، جج شکایات تک کرتے ہوئے خوفزدہ ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جج کی ذاتی معلومات سوشل میڈیا پر ڈال دی گئیں۔ ان کی اہلیہ اور بچوں کا ڈیٹا اور امیگریشن جیسے سرکاری اداروں سے چرایا گیا۔ 76 برس سے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی شراکت داری ہے۔ If it is not happening, it's our internal weakness that can be dealt with. But if the state becomes the aggressor against a judge, that is what all the high courts are highlighting. The judges, they fear reporting because what has happened to a judge of the Islamabad High Court, his personal data was put on the social media. Yes. That is an intimidation. That is what affects a judge. Even his green card was mentioned. When the children's and the wives, yes, and family members data is stolen from the government departments, the immigration and NADRA, the presumption and entire onus is on the state. ریاست میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس قسم کی ریاست ہے؟ اس کمرے میں مت بیٹھو، باہر نکل کر بات کرو، یہاں کوئی سن لے گا۔ اس کمرے میں کچھ ہو سکتا ہے، وہاں جا کر بات کرو، اپنے ساتھ کوئی فون نہیں رکھ سکتا۔ جسٹس منصور کے ریمارکس۔ کہا کہ ان مسائل کو حل کیا جائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں why is it یہ فون ادھر رکھ دو، اس فون کو ادھر رکھو، فون کو ادھر رکھ کے بات کرو، ادھر آ جاؤ، ادھر بات کرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ what sort of a culture are we running here؟ اس کمرے میں نہیں بیٹھو، اس کمرے میں باہر نکل کے بات کرو، یہ کوئی سن لے گا، فون کچھ ہو جائے گا۔ is this a state؟
What kind of a state are we running? That I have to put my phone away, I cannot talk to anybody. इस कमरे में कुछ हो सकता है, उस कमरे में कुछ हो सकता है. What kind of a culture is this? That I'm scared all the time that somebody's recording me, somebody's watching me. What is this? So do we read and अभी आप पढ़े ना 1984 जॉर्ज ऑरवेल का The Big Brother is watching? What is going on? I mean. पाकिस्तान चीन के कुमरी मिशन चंग E6 का हिस्सा बन गया है। पाकिस्तान का नया मंसूरी सैयारा तैयार कर लिया गया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन 3 मई को चांद पर रवाना किया जाएगा और ऑप्टिकल कैमरे इस मिशन के अंदर नस्ब किए गए हैं। इदारा स्पेस टेक्नोलॉजी के एलामिये के मुताबिक 3 मई को 12:50 पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजा जाएगा। सैटेलाइट iCube कमर की लॉन्च को वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। iCube कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चाइना और स्पार्को के इश्तराक से किया गया। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार के चक्कर काटेगा। मिशन से ली जाने वाली तस्वीर पर तहकीकी मकासद में काम आएंगी। मिशन चांद की मिट्टी भी जमा करेगा। किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा वहाँ के मज़दूरों की हालत से लगाया जा सकता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ 2 वक्त की रोटी को तरसने वाले मजदूरों के लिए लेबर डे सिर्फ एक दिन है। मजदूर आज भी अपना काम कर रहा है। मजीद जानते हैं महापारा जमान के इस रिपोर्ट में। यकबस्ता हवाएं हों या तपती हुई दोपहर, मजदूर और मेहनत कश के मुकद्दर में 2 वक्त की रोटी के लिए मुशक्कत की चक्की में पिसना ही लिखा है। मजदूरों के हुकूक की आवाज बुलंद करने के लिए मनाया जाने वाला लेबर डे एक त्योहार बनकर रह गया है। हम मजदूर डे तो मनाते हैं, लेकिन मजदूर डे मनाने का कोई फायदा नहीं है। दर बदर भटक रहे हैं, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, लाहौर रावलपिंडी में कहीं भी जगह काम नहीं मिल रहा। तो मजदूर आदमी खुशी न करे तो क्या करे। आम मजदूर तो ये भी नहीं जानता कि मेहनत कश का दिन मनाने का मकसद क्या है। उनका कहना है कि काम धंधा मिल जाए तो गनीमत, वरना कोई हाल नहीं। मजदूर सारा दिन ही काम करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये आलमी दिन आ रहा है मजदूरों का, लेकिन इसमें ये है कि मजदूरों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे उनका आलमी दिन है। 1 मई पर रैलियाँ भी निकाली जाती हैं और सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात का एहतमाम भी किया जाता है, लेकिन ये सब मजदूर के शब रोज नहीं बदल सके। 1 मई मजदूरों का दिन है, लेकिन आज का मेहनत कश मजदूर 2 वक्त की रोटी के चक्कर से निकले तो इस दिन की अहमियत को जाने। कैमरामैन हारून मुगल के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। यौम के हवाले से मजदूर आज भी आलमी मजदूर डे से वाकिफ़ हैं या नहीं? खानेवाल के मजदूर अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान सईद से। बिल्कुल, आज 1 मई मजदूर डे के हवाले से जो है वो कुछ मजदूर काम काज में मसरूफ़ हैं और अपने बच्चों का जो है वो पेट पाल रहे हैं। 1 मई के डे के हवाले से उन्हें इल्म है या नहीं यहाँ, और उनकी गवर्नमेंट से क्या तवक्कुआत वो बस्ता की हुई हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये महंगाई है, बच्चे साढ़े पढ़ रहे हैं, 800 रुपये दिहाड़ी है जी। बिजली का बिल है, गैस के बिल इन्होंने बिल आते नहीं जी। को साढ़े हाल तो मेहरबानी करो, हुकूमत नूं चाहिए साढ़े वास्ते को अच्छा सोचे। महंगाई है, एक टाइम की रोटी नहीं सिखाते जी। हफ्ते दे विच एक दिहाड़ी लगती, 2 लगती ने बस। तो साढ़े हाल तो रहम करो जी, महंगाई है नहीं, को महंगाई कम करो जी। हम ये अपील करते हैं हुकूमत से, हमारे 5 बच्चे हैं, हम उनकी स्कूल की फ़ीस भी नहीं पूरी कर सके, और जो है ना बिजली के बिल भी इतने आ रहे हैं कि वो भी हम अदा नहीं कर सकते। 1 महीने के देते हैं, दूसरे महीने के शार्ट हो जाता है, और दिहाड़ी जो है वो 1000 रुपये कभी लगती है, कभी नहीं लगती। बहुत परेशान है। हुकूमत से हमारी अपील है कोई महंगाई को कम करें और हमारे गरीब लोगों के लिए सोचें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मजदूरों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि आज के दिन के हवाले से गवर्नमेंट को हमारे बारे में सोचना चाहिए, और जो है बहुत शुक्रिया अदनान सईद। मटियारी, हाला, सईदाबाद, अडेरो लाल समेत ज़िले के तमाम छोटे बड़े शहरों में भी मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर आज भी गरीब लोग मजदूरी करने पर मजबूर हैं, आलमी दिन पर छुट्टी नहीं कर सकते। मज़ीद जानते हैं मिटियारी से नुमाइंदे शाहिद शम्स मेमन से। जी शाहिद शम्स मेमन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज यौम मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरे दुनिया की तरह, और पाकिस्तान में बल्कि डिस्ट्रिक्ट मटियारी में भी आज के दिन भी ये मज़दूर दिहाड़ी के लिए यहाँ पर मज़दूरी कर रहे हैं। यौम मज़दूर का दिन है आज, यौम मई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है वो छुट्टी भी होती है। उसी हवाले से यहाँ पर दिहाड़ी पर मामूल लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। बेटा आप ये बताइएगा, पूरा दिन दिहाड़ी करते हैं, मज़दूरी करते हैं, क्या बचत है, क्या आप लेके जाते हैं घर पे? आज का दिन जो है बड़ा दिन है। सही, इसमें हमें कुछ नहीं बचता, बहुत महंगाई है, और जो है ना कि हमें महंगाई पड़ रही है, लाइट महंगी है, गैस महंगा है, पानी तक हमें पैसों का लेना पड़ता है। यहाँ पे पानी भी माना जो है ख़राब है,
तो वो पानी भी हमें बहुत महंगा पड़ता है, दिहाड़ी मजदूरी इतनी है नहीं, तो इस वजह से जो है कि मजदूरी में ये बचत होती नहीं है, महंगाई है। आज के दिन मजदूरों को क्या कहोगे आप? मज़दूरों को आज के दिन के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये है कि अपील कि हमारी ये महंगाई है। हुकूमत जो है मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाए। जी बिल्कुल बढ़ाए। तो आप क्या मैसेज देंगे हुकूमत को, क्या कहेंगे आप, ये बताइए। हुकूमत को बस यही कहना चाहते हैं कि मज़दूरों की दिहाड़ी बढ़ाए या महंगाई में थोड़ा कमी करे, ताकि मज़दूर आदमी को जो है ना थोड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल, ये इनका आज यौम मज़दूर जो है वो मनाया जा रहा है। इन मज़दूरों का यही कहना है कि पूरा साल हम मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं, हमें जो है वो उजरत नहीं मिलती जो हम अपने बच्चों को खिलाएं। हुकूमत पाकिस्तान से उन्होंने यही कहा है कि हर चीज़ जो है महंगी है वो उसकी जो वो सस्ती करके दी जाए, ताकि मज़दूर जो है आज के दिन भी रेस्ट कर सके, इतना हो कि अपने बच्चों का वो गुज़रा सफ़र। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वाइस चांसलर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। निगरां सूबाई काबीना की मंजूरी और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 19 यूनिवर्सिटी के मुंतखब वाइस चांसलर का एलामिया जारी करने से इनकार। सूबे में 24 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के ओहदे खाली पड़े हैं। पंजाब में गंदम का मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत और किसानों में बात ना बन सकी। मुख्तलिफ शहरों में हालात के सताए किसान सड़कों पर आ गए। कहते हैं कि बारिश ने खुले आसमान तले पड़ी गंदम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। रिकॉर्ड पैदावार करके भी मेहनत वसूल नहीं कर सके। पंजाब का किसान परेशान, कैसे बनेगा खुशहाल पाकिस्तान? गोदाम भरे पड़े हैं। हुकूमत का मजीद गंदम ना लेने का ऐलान। कहीं आग लगने का खदशा, कहीं बारिश से नुकसान। गंदम की खरीदारी का मामला तूल पकड़ गया। गंदम की सरकारी खरीदारी ना होने पर मुख्तलिफ शहरों में किसानों का एहतजाज जारी। किसानों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहते हैं हुकूमत बारदाना की फराहमी और गंदम की खरीदारी फौरी शुरू करे। आज जब उसकी खरीद का वक्त आया तो हुकूमत गुम बनी हुई है, न उसे बारदाना मिल रहा है, न उसे खरीदारी की जा रही है। जिसकी कीमत 3900 रुपए है वो 3000 रुपए रुल रही है। मुजाहिरीन ने गिरफ्तार किसान रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। हमारा एहतजाज था, पुलिस ने इस पर जो है धावा बोला है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से कहते हैं कि वो अपनी इन नाकिस पॉलिसियों को जो है ख़त्म करें। 13 अप्रैल से गंदम की खरीदारी की मुहिम शुरू होने से अब तक किसान हर मरहले पर परेशानी से दो चार हैं। गंदम की खरीदारी के मराहिल पर अमल न होने की वजह से किसान अजियत का शिकार हुए। गंदम पॉलिसी का मामला। अपोजिशन का पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा तलब करने का फैसला। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भट्टर ने कहा कि पंजाब असम्बली के इजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा करा रहे हैं। हुकूमत ने ऐवान में गंदम की नई पॉलिसी दी ना ही किसानों ने खरीदारी कर रहे हैं। ऐवान में गंदम पॉलिसी के नाम पर खानापूरी के लिए वजीर ने महज एक बयान दिया। वजीर के राह फरार के लिए पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से किसानों से गंदम न खरीदे जाने पर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि गंदम की खरीदारी के मामले में हुकूमती पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों से गंदम न खरीदने और बारदाना न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट फरहत मंसूर ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत की पंजाब काबीना को गंदम से मुतालिक फैसले पर अदालत को आगाह करने की हिदायत। कहा हुकूमत की पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दरख्वास्त के मुताबिक बारिशों की वजह से किसान सस्ते दाम मुफस्सल गंदम माफिया को फरोख्त करने पर मजबूर है। इस्तदा की गई कि अदालत हुकूमत को फौरी सरकारी रेट पर किसानों से गंदम खरीदने और किसानों को बारदाना फराहम करने का हुक्म दे। दो तरफा ताल्लुकात और मुआशी शराकतदारी मजबूत से मजबूत तर हो रही है। चंद दिनों में सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है। दौरे से दोनों ममालिक में मुआशी शराकतदारी की रफ्तार मजीद तेज़ होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के दौरे के अख्ताम पर बयान। कहा कि क़यादत की सतह पर होने वाली मफाहमत को अमली शक्ल देने के लिए मेहनत से काम करेंगे। मुआशी शराकतदारी से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़ हुआ है। सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा तारीख़ी अहमियत का हामिल है। सेशन कोर्ट लाहौर में यूनिफॉर्म पहनने पर मरीम नवाज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल सेशन जज मुजफ्फर नवाज मलिक के रुखसत पर होने के बाद समाअत कल तक मुलतवी।
दरख्वास्त गुजार से फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट तलब कर रखी है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मरीम नवाज़ का पुलिस यूनिफॉर्म पहनना क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मरीम नवाज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। शहरियों से पेट्रोलियम लेवी की मद में तारीखी वसूलियाँ की गई। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक माह सालाना बुनियाद पर पेट्रोलियम लेवी में वसूली तकरीबन 100% इजाफा हुआ है। रवा माली साल के पहले 9 माह में लेवी से वसूली 1719 अरब 56 करोड़ रुपए रही है और गुज़श्ता साल जुलाई तक मार्च लेवी मद में वसूली 362 अरब 48 करोड़ रुपए थी। रवा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी की वसूली का हदफ 869 अरब रुपए मुकर्रर है। IMF ने रवा माली साल लेवी से वसूली का तखमीना 918 अरब रुपए लगाया है। गुज़श्ता माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 580 अरब रुपए वसूल किए गए थे। इस वक्त फ़ी लीटर पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी वसूल की जा रही है, जबकि हाई स्पीड डीजल के फ़ी लीटर पर भी 60 रुपए के हिसाब से लेवी आयद है। महंगाई के सताए शहरियों के लिए रिलीफ। LPG की कीमत में बड़ी कमी। हुकूमत ने पेट्रोलियम गैस 11 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर सस्ती कर दी है। नई कीमत 238 रुपये 46 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपये 18 पैसे सस्ता होकर 2813 रुपये 85 पैसे का हो गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 30 अप्रैल 2024 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 5,56,548 तक पहुँच चुकी है और वापसी का सिलसिला जारी और सारी है। 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 13,000 लोग अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 632 गाड़ियों में 512 ख़ानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। आगे बढ़ेंगे। हालिया बारिशों के बायस मरी के इलाके अलियोट में लैंड स्लाइडिंग और चट्टान सरकने के वाक़यात पेश आए। जानी और माली नुकसान के पेश नज़र पाक फ़ौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक फ़ौज रेस्क्यू 1122 और महकमा शारात रोड क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। मरी कोहाला रोड को एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि रोड पर मौलिक चट्टान को तोड़कर हटाने का काम जारी है। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ के बल्दियाती नुमाइंदे भी इख्तियारात और फंड्स ना देने पर फट पड़े। कहते हैं कि टिकटॉकर्स के लिए फंड्स हैं, हमारे लिए नहीं। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। बल्दियाती नुमाइंदों ने सरकारी दफातर को ताले लगा दिए। फंड्स ना मिलने पर PTI के नुमाइंदे आग बगूला। मुजाहिरीन का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने आइन में तरमीम करके हमारे इख्तियारात खत्म कर दिए हैं। तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, हमारे जो जितने भी काम हैं हलकों में वो इसी तरह पेंडिंग पड़े हुए हैं। एहतजाज में तहरीक इंसाफ के बल्दियाती नुमाइंदों ने शिरकत की। कहते हैं टिकटॉकर्स को फंड देना बंद करें, हमें फंड्स ना मिले तो 7 मई को सूबाई असेंबली के सामने धरना देंगे। हमारा आज एहतजाज है। आज तो हमने मेट्रोपोलिटन की तालाबंदी की है। इंशाल्लाह 7 मई को इंशाल्लाह हमारा भरपूर एहतजाजी धरना होगा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बल्दियाती नुमाइंदे शिरकत करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने के सिर्फ दावे किए, अमल नहीं किया। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़ पेशावर। खबर शामिल करेंगे। कराची में जुर्म रुकने का नाम नहीं ले रहा। शहर बेअमा में सुजानी और औरंगी जान में मजीद 2 बासी जान से गए, जबकि गुलिस्तानी जौहर में लुटेरे इलाकों का सामान लूट कर ले गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में शहरी गैर महफूज, मुज़ाहिमत करें तो जान से जाएं, ना करें तो हलाल कमाई गंवाएं। सुरजानी में चौकीदार सफाक लुटेरों की गोलियों का निशाना बन गया। मुल्जिमान ने अशफाक से पिस्तौल और नकद रकम छीनी, मुज़ाहिमत पर फायरिंग करके कत्ल किया और बाआसानी फरार हो गए। तो अल्लाह जाने बाहर जो भी बात हुई तो यहाँ पे दफ्तर पे लिया है बात। इशफाक भाई ने थोड़ा बेस करो उसके साथ और उसने लोड मारी, डायरेक्ट उसने गोली मार दी। औरंगी में डाकुओं की गोली का निशाना बनने वाला 35 साला अब्दुल्ला दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल रिश्तेदार के साथ बैठा था। 2 मुसल्लह डाकुओं ने धावा बोल दिया। अब्दुल्ला ने एक डाकू को दबोचने की कोशिश की, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग करके जान ले ली। सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब डकैती मुजाहिमत पर 40 साला वसीम जख्मी हुआ। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में डाकुओं ने मुजाहिमत पर डॉक्टर को जख्मी कर दिया और 8 लाख रुपए लूट लिए। गुलिस्तान जौहर में ही निजी कंपनी की कैश वैन में लूट मार के दौरान पुलिस पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 2 राहगीर जख्मी हो गए। SSP ईस्ट के मुताबिक मुल्जिमान करीब 1.5 लाख रुपए से जायद नकदी लूट कर फरार हुए। 8 से 10 लाख रुपए लूटने से बच गए। मुल्जिमान की तलाश जारी है। न्यू चाली शारा लियाकत कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के सामने दुकान में मुबैना गैस सिलेंडर में धमाका हुआ। जनरेटर की दुकान के न्यू चाली शारा लियाकत का इलाका धमाके से गूंज उठा। दुकान का मलबा कई फीट
दूर जा गिरा। धमाके से करीबी दुकानों को नुकसान पहुंचा। जहां बहक 2 अफराद समेत जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग पर काबू पाने में ताखीर हुई, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड का देर से पहुंचना था। कम से कम पौने घंटे के बाद आई। आग बुझाने और इमदादी कार्रवाइयों में 9 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर समेत स्नार्कल ने हिस्सा लिया। डीजी रेस्क्यू 1122 सिंध के मुताबिक रेस्क्यू ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। ये सिलेंडर धमाका था, वो ऑपरेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद पता चल सकेगी वजह। वैसे ये जनरेटर मार्केट है, जनरेटर की शॉप है और इसकी वजह से शॉप की आपने देखा है कि जो शॉप थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। 6 जाने इसमें अगर हम कहें, उनको जख्मी तौर पर यहाँ से निकाला, फ़ौरन उनको नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट की। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को सिलेंडर धमाके के शवाहिद नहीं मिले। दुकान में सुई गैस का इखराज हुआ और सिगरेट सुलगाने पर आग लगी। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। क्वेटा में नशे के आदी अफराद और पुलिस के माबैन आंख मचोली। पशीन स्टॉप पर कैदी वैन से मुलजिमान के फरार होते हुए वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने मेन नाले से मुतअद्दिद नशेइयों को गिरफ्तार करके वैन में डाल दिया। विहाड़ी शहर के वस्त में लाखों रुपए की मालियत से तैयार होने वाले कौसर पार्क बल्दिया विहाड़ी के मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अशरफ चावला पार्क में मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। जी अशरफ चावला, बताइएगा क्या सूरत हाल है पार्क की? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौसर पार्क में, जहाँ पर लाखों रुपए की मालियत से बनाया गया पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। ये जी एक कौसर पार्क 11WB के नाम से गवर्नमेंट की तरफ से लाखों, बल्कि ये कह लें कि करोड़ों रुपए लगाया हुआ इस पार्क पे, ये एक गंदगी, तोफन और ये कचरे में तब्दील हो चुका है। इसके जो दरवाजे हैं वो नशई उतार के ले गए हैं, जो फ़िल्टर वाला निज़ाम है वो भी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इधर इतने खूबसूरत किस्म के झूले लगाए गए थे आवाम की तफरीह के लिए, बच्चों की तफरीह के लिए। वो सारे झूले जो है ना वो नशई उतार के लेके चले गए हैं। मेरा हुकूमत वक्त वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि इस पार्क को दोबारा बहाल करके आवाम को सस्ती तफरीह मुहैया की जाए। ये हमारा पार्क है जी, सिटी के अंदर है, शहर के साथ है सारा। और ये जानवरों का फुसला यहाँ पे फेंका जाता है और शापर फेंके जाते हैं। यहाँ पे कोई बच्चे हैं तो पार्क में खेलने के लिए आते हैं तो उनको डर लगता है कि यहाँ के नशेइयों ने अपनी अमाजगाह बनाई हुई है और बच्चे यहाँ पे आने से डरते हैं। और यहाँ पे जो सामान था वो सब नशेई उतार के ले गए। ना ट्यूबवेल चलता है, जो हमारे इधर को लाइट वगैरह लगी हुई थी वो तोड़ के नशेई ले गए हैं। वो सब ने हमारे कमरे हैं, उनके दरवाजे टूटे हुए हैं और जो भी कोई आता है तो नशेइयों की वजह से यहाँ पे डर लगता है और कोई अंदर नहीं आता। जी, आपने सुना, यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ पर कचरा कुंडी और गोबर और ये जो सारे जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं इनको ख़त्म किया जाए और इसको एक अच्छा पार्क बनाकर लोगों के लिए तफरीह मुहैया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हाफसाबाद गिरदनुमा मूसलाधार बारिश के बायस पहुंचम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब बड़े रुकबे पर गंदम की तैयार फसल काटी नहीं जा सकी, जिसके बायस काश्तकार परेशानी का शिकार हैं। मजीद जानते हैं हाफिजाबाद से अपने नुमाइंदे हमाद हुसैन सियालवी से। जी हमाद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिजाबाद के गुजरांवाला रोड पर। बारिश जो है वो बहुत मूसलाधार हो रही है और 2-3 दिन से बारिशों का सिलसिला जारी है। आइए हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, बारिश जो है वो तो मूसलाधार हो रही है, उसके साथ बारिश होने की वजह से मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन इस मूसलाधार बारिश की वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और गंदम की फसल जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ऐसी जो है बारिश हो, रहमत की बारिश हो, रहमत की बारिश ना हो। जी बिल्कुल, जो हाफिजाबाद में बारिश स्टार्ट हुई इससे मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन ये है कि यहाँ पे लाइट की, बिजली की बंदिश हो जाती है और नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं। तो बारिश जो है वो बाइस रहमत है, लेकिन इसमें मसाइल भी जो है ना वो उसका सामना करना पड़ता है। हाँ जी, ये थे हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद, बारिश के बायस जो मामलात हैं। ठीक है हमाद, आपका बहुत शुक्रिया। लंडी कोतल में 2 घंटे बिजली की फराहमी के खिलाफ ग्रैंड जिरगा मुनक्किद किया गया, जिसमें बल्दियाती नुमाइंदगान, मुशीरान समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाह रहमान शनिवारी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शाह रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल,
लंडगोतल ग्रेड स्टेशन में टिस्को हुकाम ने बिजली का दौरानिया में 2 घंटे रख दिया है, जिसके खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। इस सिलसिले में तहसील चेयरमैन की क़ियादत में ग्रैंड कौमी जरगा बुलाया गया है। इस मौका पर मेरे साथ तहसील चेयरमैन शेख खालिद शिनवारी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ग्रैंड कौमी जरगा बुलाने का मकसद क्या है। बिल्कुल, इस जरगे बुलाने का मकसद ये है कि पिछले हफ्ते टिस्को ने कबायली अजला के लिए बिजली का दौरानिया 2 घंटे किया है। इसके रद्द अमल में आज लंडकोतल के तमाम अक़वाम, हर मकतब फ़िक्र के लोगों ने इसमें शिरकत की और इस पे सख्त रद्द अमल का मुज़ाहरा किया है और इस 2 घंटे दौरानिया के शेड्यूल को मुस्तरद किया है। हमारा मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत कबायली अजला के लिए बिजली की मद में दे रही। अपडेट करने के लिए आगे पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका सिक्योरिटी खदशात हैं। इसराइल का रफा ऑपरेशन के लिए काबिल भरोसा मंसूबा नहीं देखा गया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने मजीद कहा कि रफा ऑपरेशन से मुतालिक हमारे खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी खदशात के बावजूद मंगल को रफा ऑपरेशन करने का कहा था। सलामती खतरात से निपटने में पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मफाद है। दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के साथ कौमी सलामती उमूर पर हमारी शराकत दारी है। पाकिस्तानी फ़ौज के साथ आला सतह मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन जारी है। तौहीन अदालत पर साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को $9,000 जुर्माना कर दिया गया। अदालत ने वार्निंग दी कि आइंदा तौहीन अदालत की तो जेल भी जा सकते हैं। अदालत का कहना था कि साबिक अमरीकी सदर ने 9 बार हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। अदाकारा मी डैनियल्स के वकील भी ट्रंप के खिलाफ अदालत में पेश हुए। वकील ने कहा कि इंतखाबात की वजह से उस वक्त अदाकारा मी डैनियल्स का मामला दबाया गया। ट्रंप का कहना था कि अदालत का मुझ पर आयद किया गया जुर्माना गैर आइनी है। आज़ादी इज़हार से मुतालिक जज ने मेरा आइनी हक छीन लिया। ट्रंप ने स्टार मी डैनियल्स और कैरन मैकडोगल से जिनसी ताल्लुक़ का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। लाहौर में वाइट हाउस होटल के इफ्तिताही तकरीब सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अरकान पंजाब असम्बली ग़ज़ाला सलीम भट्ट, अमरीन इस्माइल, कौसर जावेद और अस्मा नास अब्बासी, मायरा तलाल और शाजिया अतउल्ला समेत दीगर अरकान भी शरीक हुए। वाइट हाउस होटल के CEO हाजी इस्माइल खोकर और अमरीन इस्माइल की जानिब से मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने दीगर पार्लियामेंटेरियंस के हमरा रिबन काट कर होटल का इफ्तिताह किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि वाइट हाउस होटल इंडस्ट्री में खुशगवार इजाफा है। MPA अमरीन इस्माइल ने अरकान असम्बली और पार्टी कारकुनान के लिए 50% डिस्काउंट का ऐलान भी किया। और इसी के साथ ही बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।